Good evening, everybody. Today we are going to start with the thermodynamics. So before that, I'll introduce myself. I'm Professor Rajesh Mandale. Basically, I'm a mechanical engineer, and as long as teaching is concerned, I have near about 22 years experience of teaching field. So I started my teaching career right in 1995, and till date, I'm in teaching field. Anyway, so first of all, what is thermodynamics? Thermodynamics is the science which deals with the energy, or simply, thermodynamics is the science of energy. This is simply a one line definition of thermodynamics. लेकिन अगर if we want to define the thermodynamics in a broader sense, then we can define the thermodynamics in such a way that it is that branch of engineering science which deals with the energy possessed by gases and vapors and conversion of this energy into heat and work. Now see, in the another definition, that is पहला जो definition मैंने बताया तुमको, that is thermodynamics is the science of energy. अगर अपने को कुछ thermodynamics के बारे में define करने के लिए अगर कुछ नहीं आता तो you can just leave this single line definition that it is the science of energy. But in a broader sense, if you want to define thermodynamics, then another definition you have to go for. That is, it is that branch of engineering science which deals with the energy possessed by gases and vapors. Okay, and conversion of this energy into heat and work. I use the word gases and vapor. Gases we can understand. Say, suppose if there is any engine, किसी बाइक का है या फिर किसी फोर व्हीलर का अगर इंजन है तो इट इज अंडरस्टूड दैट वी यूज्ड टू जस्ट सप्लाई द फ्यूल टू द इंजन. The fuel is usually been mixed with air and then that fuel gets ignited there. Combustion होता है फ्यूल का. ओके, अब combustion होगा तो हीट जनरेट होगा. अब हीट अगर जनरेट होगा तो वो वही हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं. ऑब्वियसली वर्क में कन्वर्ट करते हैं मतलब वी गेट द पावर, राइट. सो whatever the products of combustion we get in inside the engine, that is a gas, right? That is the gas generated because of combustion of fuel or mixture of air and fuel, like this. But suppose if we take the example of any of the power plant का अगर example लेते हैं तो there are various types of power plants. Some are nuclear, some are hydraulic, और सम पावर प्लांट्स आर थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट मतलब ऐसा पावर प्लांट जिसके अंदर स्टीम इज वर्किंग मीडियम. तो ये स्टीम जनरेट कैसे होता है? तो जैसे बॉयलर में, अब बॉयलर सब वैसे तो सबके घर में भी बॉयलर होता है, प्रेशर कुकर तो होता ही है सबके घर में. तो दैट प्रेशर कुकर इज ऑल्सो वन ऑफ द बॉयलर. प्रेशर कुकर भी बॉयलर ही है. ओके, सो नाउ तो प्रेशर कुकर के अंदर अगर अगर प्रेशर कुकर का भी मैंने अगर आपको एग्जांपल दिया तो how the food is been cooked inside the pressure cooker, we supply the heat, okay, to the pressure cooker. प्रेशर कुकर के अंदर क्या डालता है, कभी देखा है प्रेशर कुकर के अंदर? वो जो दाल चावल के साथ साथ कुछ नीचे पानी भी रहता है. ऑब्वियसली दैट वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम. स्टीम मतलब वेपर्स फॉर्म होता है. सो दैट वेपर कंटेन्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी लेटर ऑन यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू वर्क. वर्क मतलब क्या? अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेटा देखने का, वर्क इज सेड टू बी डन दैट इज व्हेनेवर वी गेट द डिस्प्लेसमेंट. कोई भी जब डिस्प्लेसमेंट अपने को मिला है तो मतलब वर्क हुआ है. ओके, सो दैट इज द मीनिंग. ओके, तो नाउ विल प्रोसीड फर्दर. अभी थर्मोडायनेमिक्स का तो मैंने मतलब समझा दिया है तुमको, राइट है. तो गैस और वेपर ये भी समझ में आ गया. और गैस और वेपर को अभी अपने को किसमें कन्वर्ट करने का है? दैट इज हीट और वर्क. तो वेपर इटसेल्फ कंटेन्स enormous amount of heat. Okay, and then that vapor can be utilized to just get some work output. Okay, so I'll start presenting some I'll share my screen with you now.
I'll share the whiteboard. So let's go now. Okay. So as long as thermodynamics is concerned, I said that it is a science of energy. Thermodynamics is a science of energy, and in case of thermodynamics, first of all, we'll just discuss some basic concepts. अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है, वो बेसिक कंसेप्ट के अंदर सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट आएगा वो आएगा हीट इंजन का. सो हीट इंजन. नाउ व्हाट इज हीट इंजन? हीट इंजन इज अ डिवाइस which converts heat into work and vice versa. हीट को वर्क में या फिर वर्क को हीट में जो भी डिवाइस कन्वर्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज हीट इंजन. अब जरा एक हीट इंजन, इसका मतलब डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू जस्ट ड्रॉ एनी बिग फिगर विच विल रिप्रेजेंट अ हीट इंजन. एक सबसे सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल अगर आपको दूं हीट इंजन का, तो लेट्स कंसीडर दैट वी आर हैविंग अ सिलेंडर and here this is the piston and there is certain gas enclosed inside this piston and cylinder arrangement, right? And suppose if I supply here the heat by some external source, then this becomes the heat engine. This is also one of the heat engine. ओके. तो और थ्रू आउट अपना ये थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस के अंदर जब भी आगे चल के मैं कुछ डेरिवेशंस वगैरह कर रहा हूँ, आई जस्ट कीप ऑन ड्राइंग डाउन ओनली दिस फिगर एज अ हीट इंजन. ओके. सो concept of heat engine, what does the heat engine indicates? That it is just a device which converts heat into work and vice versa. heat को work में और work को heat में convert करने वाला कोई भी device जो है that is a heat engine. Now related with the thermodynamics, I'll discuss here some basic concepts. Okay. अभी देखो, दिस इज अ कोर सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. एकदम अपने मैकेनिकल ब्रांच का, मैकेनिकल के फील्ड का एकदम कोर सब्जेक्ट है. अब ये सब्जेक्ट के ऊपर आपके हायर सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट बेस्ड हैं? सो द बेस फॉर दिस सब्जेक्ट दैट इज दिस सब्जेक्ट विल बी यूज्ड इन अनदर सब्जेक्ट इन सेमेस्टर 5, दैट इज हीट ट्रांसफर. इसके अलावा सेमेस्टर 5 में ही आपको आईसी इंजन्स भी, इंटरनल कंबशन इंजन्स, ओके, उसमें भी ये थर्मोडायनेमिक्स इज द बेस. Apart from that, in the semester 6, you will have refrigeration and air conditioning. Then, after that, power plant engineering in semester 7. Then, power engineering. Like this, there are various subjects related with this subject. Okay, and in spite of that, uh, from those students who wish to appear for GATE or Indian Engineering Services, that is IES, for them, this is a very important subject. गेट और आईईएस के अंदर भी इसका बहुत वेटेज होता है, याद रखने का. ओके.
और जैसे मैंने आगे के भी जो सब्जेक्ट्स आपको कहा कि जो हायर सेमिस्टर में आप पढ़ने वाले हो, हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजीन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, लाइक दिस एंड सो ऑन. सो ऑल these subjects will use this thermodynamics as the base. तो बेटा एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं वो बात दूर रखो, लेकिन सब्जेक्ट पूरा पढ़ने का है. ओके. सो जैसे कि अभी ये सेमिस्टर में आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी पढ़ने जा रहे हो, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेस क्या है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट, इन सेमिस्टर 1. तो लाइक दिस अभी मतलब सॉम का जो तुम्हारा बेसिक सब्जेक्ट है वो मैकेनिक्स है. वैसे आगे के सेमिस्टर्स के लिए जो भी मैंने सब्जेक्ट्स के नाम बताए उन सब के लिए बेसिक सब्जेक्ट मतलब थर्मोडायनामिक्स. तो कॉन्सेप्ट्स इसके इंपॉर्टेंट रहेंगे. और ये जो टर्मिनोलॉजी अब मैं बताने वाला हूँ, हो सकता है ये कुछ पार्ट अभी आप 12th में भी पढ़े रहेंगे. ओके. तो बट देयर द concept was not as per the application. Engineering is a field of application. So now we are going to study the subject from application point of view. Analysis ज़्यादा रहेगा, derivation ज़्यादा रहेंगे. Okay. So first of all, the first concept which we are going to discuss is system. So what is the meaning of system? Okay. Now, as far as system is concerned, system is a definite region in space over which attention is focused for studying some thermodynamic process. क्या कहा मैंने? System is a definite region in space. It is a definite region in space over which attention is focused for studying some thermodynamic process. I'll give you an example. Right now you are sitting in a room. अब कोई सब लोग घर में रूम में बैठे हो, बराबर कि नहीं? सो नाउ सपोज इन योर रूम एसी इज गोइंग ऑन, right? So that room in which the AC is running, so that AC, that air conditioning, sorry, that air conditioner is supposed to maintain the temperature of the room in which you are sitting less than that of the atmospheric temperature. बाहर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करने का काम वो एयर कंडीशनर का है जो रूम के अंदर आप बैठे हो, बराबर. तो तुम्हारा रूम मतलब क्या हो गया, सिस्टम है. बिकॉज it is just controlling the temperature inside the room, means that is a definite region in space. Room का space में है and that is a definite region. So just I'll draw here one figure. Say this is the system now. ओके. रैंडमली ऑफ एनी शेप यू कैन ड्रॉ. ये बाय डिफॉल्ट अभी ये एलिप्टिकल शेप हो गया इसका. अभी इसके अंदर ये व्हाइट बोर्ड के अंदर ये ऐसा है कि ये कोई थोड़ा बहुत कुछ भी निकालो तो एलिप्स या सर्कल ले लेता है, बट रैंडमली एनी शेप कैन बी ड्रॉन. ओके. सो दिस इज अ सिस्टम, राइट. मतलब दिस इज द रूम इन विच यू आर सिटिंग. नाउ द रूम इन विच यू आर सिटिंग हैज गॉट सर्टन वॉल्स, सो दोज वॉल्स आर द बाउंड्रीज, राइट है. सो सिस्टम का मतलब अपने को समझ में आ चुका है. सिस्टम दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ. इट इज अ डेफिनेट रीजन इन स्पेस ओवर विच अटेंशन इज फोकस्ड फॉर स्टडिंग सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. ओके, सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. आखिरी में एक वर्ड भी यूज किया मैं, सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. वापस से एग्जांपल देता है कि वो रूम जिसके अंदर आप बैठे हो वहां पे अगर एसी लगाया है तो वो एसी का काम क्या है, रूम को ठंडा रखने का, बराबर है. रूम को ठंडा रखने का है मतलब क्या है, वो कूलिंग कर रहा है, तो कूलिंग इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. अगर ठंडी है तो हम हीटर लगाएंगे, हीटिंग इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. लाइक दिस देयर आर वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. ओके. सो एनीवे, अब जैसे ये सिस्टम, एवरी सिस्टम हैज गॉट बाउंड्री. जैसे जो रूम के अंदर आप बैठे हो वो रूम को वॉल से, तो वॉल्स आर द बाउंड्रीज, राइट. ओके. तो बाउंड्री मतलब क्या, हाउ टू डिफाइन अ बाउंड्री. समझ में तो आता है कि ये रूम का वॉल्स यानी कि बाउंड्री है, बट हाउ यू डिफाइन द बाउंड्री. इट इज एन एनवलप विच एनक्लोजेस अ सिस्टम. एक एनवलप जो सिस्टम को एनक्लोज करता है उसको कहा जाता है बाउंड्री. अगेन आई रिपीट द मीनिंग ऑफ द बाउंड्री, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द बाउंड्री. इट इज एन एनवलप which encloses a system, so that is a boundary. Now as far as boundary is concerned, this boundary can be either
fixed or movable. Okay, the boundary can be either fixed or movable. So I'll give you the example of fixed boundary. Fixed boundary जो रूम के अंदर आप बैठे हो उसको walls तो आप कुछ इधर उधर हिला नहीं सकते हो. So obviously that is a example of a fixed boundary. Now as long as the movable boundary is concerned, let's take the earlier example of a gas enclosed and in a piston and cylinder arrangement. So here this is a cylinder and here this is the piston. देखो ये piston है इधर का और ये हो गया cylinder and inside this there is a gas. Now suppose if I supply heat, यहाँ पर अगर मैं heat supply अगर करता हूँ, अगर ये गैस को अगर मैंने heat supply किया तो obviously the gas will expand. जैसे हीट सप्लाई करते हो किसी भी गैस को तो वो गैस एक्सपांशन होता है. अब गैस अगर एक्सपांड अगर हुआ तो ऑब्वियसली दिस पिस्टन विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. पिस्टन को पुश करेगा ना बेटा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, राइट है. नाउ हाउ द बाउंड्री इज बीइंग शोन, सी नाउ आई शो हियर द बाउंड्री. दिस इज द बाउंड्री. Boundary is usually being shown by dotted line because in engineering, I mean to say in our field mechanical, these boundaries are sometimes imaginary. अब क्या होता है यहाँ पर, ये सिलेंडर के वॉल्स के कांटेक्ट में जो भी बाउंड्री आता है वो तो फिक्स है, लेकिन जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये द बाउंड्री which is in contact with this piston, obviously that will also start moving. So in this case the boundary is movable. ये बाउंड्री मूवेबल है. ये केस के अंदर आई कैन से दैट दिस इज द फिक्स बाउंड्री. ओके, सो बाय दिस टाइम नाउ द कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री इज आल्सो क्लियर टू यू. वंस अगेन आई रिपीट, what is boundary? It is an envelope which encloses a system. It is an envelope which encloses a system. Boundary can be either fixed or movable. Okay, अभी देखो बेटा, अपना जब भी लेक्चर रहते जाएगा एट द टाइम ऑफ लेक्चर ऑलवेज कीप नोटबुक एंड अ पेन विद यू. आई होप रुचि मैडम माइट हैव टोल्ड यू, क्योंकि जैसे मेरा डिस्कशन आगे बढ़ेगा तो वैसा वैसा मैं तुमको कुछ नोट्स भी डिक्टेट करूंगा. इसके अलावा आगे चल के अपने डेरिवेशंस भी है. अभी जैसे शुरू में ये सब्जेक्ट में क्या होता है कि इन दिस सब्जेक्ट देयर इज लॉट ऑफ थ्योरी. पहले थ्योरी ज़्यादा लगेगा, उसके बाद में बहुत सारे डेरिवेशंस है एंड देन आफ्टर दैट लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स. तो अब मतलब as far as exam is concerned, usually in the paper there are 70% numerical, 60 to 70% numerical and 30 to 40% theory. ऐसा ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ओके, कुछ समय के बाद में मैं मॉड्यूल वाइज तुमको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता हूँ कैसे होता है एग्जाम के अंदर. ओके, नाउ एनीवे, सो I'll clear the screen here now. तो अभी मैंने तुमको जो पार्ट एक्सप्लेन किया, सबसे पहले आई स्टार्टेड विद द थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन, देन वी हैड द डिस्कशन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ द सिस्टम. सिस्टम के बाद हम डिस्कस किए बाउंड्री. ओके, सो लेट्स से हियर दिस इज वन ऑफ द सिस्टम and this is the boundary for the system. Then the next concept is of surrounding. Okay, अब surrounding वापस let's come back to the system in which you are sitting, that is a room. जो रूम के अंदर आप बैठे हो वो भी एक सिस्टम है. रूम के बाहर क्या है तो सराउंडिंग है. See, the room in which you are sitting is a system. The walls of the room are boundary. Outside the boundary, that is I mean to say outside the walls, what is there? Surrounding. So everything external to the system is called as surrounding.
Everything external to the system is called as surrounding. Okay. So here now this is the surrounding, right? And then after that, if I combine the system and surrounding, if I combine the system and surrounding, then it forms a universe. Then it forms a universe. So what is universe? How do you define the universe? A system and surrounding combined together forms a universe. I repeat, a system and surrounding combined together forms a universe. This is the definition of the universe. So these are the four basic terms which we will be using repeatedly. Okay. Now, anyway, having discussed this concept, let's proceed further. Okay, but before we go ahead, now do one thing. I'll dictate you the definition. First, put the title as thermodynamics. नोटबुक में बेटा थर्मोडायनेमिक्स टाइटल डालने का अभी आपने आई स्टार्ट डिक्टेटिंग नोट डाउन it is that branch of engineering science it is that branch of engineering science which deals which deals with the energy which deals with the energy possessed by gases and vapors possessed by gases and vapors and conversion of this energy and conversion of this energy into heat and work into heat and work. Then next you will write down the title as heat engine. Heat engine. It is a device. It is a device which converts heat into work. Heat, H-E-A-T, heat into work, and vice versa. And vice versa. Next, system. Put a title system. In that,
It is a definite region in space. It is a definite region in space. It is a definite region in space over which over which attention is focused. Attention is focused for studying some thermodynamic process. For studying some thermodynamic process. Then boundary. It is an envelope boundary. It is an envelope which encloses a system. Which encloses a system. It can be either fixed or movable. It can be either fixed or movable. Next, surrounding. Everything external to the system. Everything external to the system is called as surrounding. Everything external to the system is called as surrounding. Then even we had the discussion related with the universe. Put the next title as universe. In that, note down a system and surrounding. A system and surrounding combined together forms a universe. Forms a universe. उधर साइड में बेटा ये फिगर ड्रॉ करने का, ये यहाँ पर मैंने ये फिगर बनाया ना, सिस्टम, उसका बाउंड्री दिखा है इधर सराउंडिंग, देन नीचे लिखा है सिस्टम प्लस सराउंडिंग फॉर्म्स यूनिवर्स, ये पूरा फिगर बना इधर का. I hope you have drawn the figure. Shall I clear the screen? Okay, so I'll repeat the boundary. बाउंड्री रिपीट करता हूँ. अनिकेत लिसन. Boundary. It is an envelope.
it is an envelope which encloses a system. Which encloses a system. It can be either fixed or movable. It can be either fixed or movable. झालं अनिकेत येऊन येस झालंय सर. का आता? हो हो झाले झाले. थँक्यू ओके. सर. प्रणव सराउंडिंग रिपीट करतोय. Everything external to the system. Everything external to the system is called as surrounding. Is called as surrounding. I hope now there is no confusion. अगर किसी का बीच में कुछ लिखने का अगर छूट गया रहेगा तो जस्ट यू कैन फॉर अ मोमेंट अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो. ये तो क्या होता है कि जैसे मेरे सामने अगर ये स्क्रीन पर अगर बोर्ड रहा है ना तो मैं वो चैट बॉक्स वगैरह देख नहीं सकता हूँ. तो इन दैट केस जस्ट फॉर अ मोमेंट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो. ओके. सो अभी की डिस्कशन में किसी को कुछ डाउट हुआ का बेटा? कोणाला काही डाऊट आहे का आतापर्यंतच्या डिस्कशन मध्ये? Okay. So now we'll proceed further. Okay. I'll clear this screen. अभी थोड़ा सा सिस्टम का और डिस्कशन करने का अपने को. We'll discuss the type of system. Many times in MU Mumbai University. Yeah. Now, basically there are three types of system: a closed system, open system, and isolated system. Okay. 4 to 6 मार्क्स के लिए पूछा है एग्जाम के अंदर बहुत बार. जैसे जैसे अपना लेक्चर आगे बढ़ेगा तो वैसा वैसा आई ऑलवेज कीप ऑन गिविंग यू द नोट्स आल्सो. और अपने नोट्स के अंदर बेटा ऐसा ईयर डाला रहेगा. हाँ, कौन सा कंसेप्ट कौन सी ईयर में पूछा वगैरह है वो. तो नो नीड टू बाय एनी बुक आल्सो, बट स्टिल इफ यू वांटेड टू बाय द बुक एंड ऑल, सो आई लेट यू नो लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द टुडेज डिस्कशन. एनीवे, लेकिन नोट्स ऐसा दूंगा मैं. अभी आज का जैसा लेक्चर हो गया तो आज के लेक्चर तक जितना मैं डिस्कशन करेगा वो भी नोट्स भेज देगा. लेकिन स्टिल देर आर सम कंसेप्ट विच आर रिक्वायर्ड टू बी देयर इन योर नोटबुक. तो तुमने लिखना ही है नोटबुक के अंदर जो पार्ट लगता है अपने. ओके. सो टाइप्स ऑफ सिस्टम. सो द वेरी फर्स्ट सिस्टम विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ क्लोज्ड सिस्टम. नाउ अभी जैसे थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन के अंदर मैंने दो वर्ड यूज किए थे, दैट इज हीट एंड वर्क. व्हाट आर दे? ये हीट और वर्क क्या है? दे आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ये डेफिनेशन नहीं होता है, हीट और वर्क का डेफिनेशन है. दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ हीट और वर्क. ओके. दे आर जस्ट सिंपली द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ओके. अब ये क्यों बताया मैं, तो आगे तुमको समझ में आएगा ये. अभी जरा सबसे पहले एक क्लोज्ड सिस्टम, मतलब जो शुरू में मैंने तुमको पिस्टन और सिलेंडर का एग्जांपल दिया था, वही दोबारा यहाँ पर अभी मैं ड्रॉ करने वाला है. हियर दिस इज द पिस्टन, सॉरी, दिस इज द सिलेंडर, and here this is the piston. And inside this piston and cylinder arrangement there is a gas. So the gas is the system for me and this is the boundary. This is the system boundary.
Okay. Now suppose if I supply the heat by using some external source, ओके सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. देखो एनर्जी हीट दे रहा हूं मैं किसको, गैस को दे रहा हूं, तो एनर्जी हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. देखो एनर्जी ने सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस किया है. ये डॉटेड लाइन से ये डॉटेड जो दिखाया मैंने दैट इज द बाउंड्री. ओके तो एनर्जी हैज क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री. ओके अब कुछ समय के बाद क्या होगा, जैसे गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस विल एक्सपांड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपांशन ऑफ द गैस दिस पिस्टन विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. पिस्टन विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है. मूवमेंट मिला है मेरे को पिस्टन का, मतलब क्या हुआ है, आई गॉट द वर्क. पिस्टन का मूवमेंट मिला मतलब आई गॉट द वर्क. तो वर्क भी देखो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर आ गया. मतलब हीट एंड वर्क बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. मतलब ये क्या होता है कि क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री. एनर्जी कैन क्रॉस सिस्टम बाउंड्री. ओके बट mass, this gas which is enclosed in a piston and cylinder arrangement has got some definite mass. ये गैस को कुछ ना कुछ डेफिनेट मास है. लेकिन एक बार मान लो अगर मैंने 10 kg गैस अगर डाल दिया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर, अब ना तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ ना दूसरा कुछ अंदर डाल सकता हूँ. मतलब क्या हो गया, मास विल रिमेन फिक्स. मास कैनॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री. सो आई कैन से दैट क्लोज सिस्टम इज अ सिस्टम in which only energy can cross the system boundary but mass cannot cross the system boundary. Okay so such a system is called as a closed system. अब टाइप्स ऑफ सिस्टम डिसाइड करने के लिए क्या होता है कि अपने को ये देखना होता है कि मास क्रॉस करता है सिस्टम बाउंड्री को या एनर्जी क्रॉस करता है या दोनों क्रॉस करता है या दोनों नहीं क्रॉस करता है. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट there are various types of system, that is three types of system. So first one is a closed system in which only energy can cross the system boundary but mass cannot cross the system boundary. एग्जाम के अंदर जब इसका शॉर्ट नोट पूछता है तो वो ये भी बोलता है कि जस्ट स्टेट विद एन एग्जांपल करके. सो एग्जांपल सिंपली यू कैन से दैट a gas enclosed in a piston and cylinder arrangement and you have to draw this figure. So this is what is a closed system. Okay so put the title as closed system, draw this figure. क्लोज सिस्टम में टाइटल डालने का पहले ऊपर डालो टाइप्स ऑफ सिस्टम मेनी टाइम्स इन एमयू 4 to 6 मार्क्स. उसके बाद बनाओ फिगर ये. I hope the figure is ready. I'll dictate few lines. In this system, only energy can cross the system boundary. In this system, only energy can cross. Only energy can cross system boundary. System boundary. But mass cannot cross the system boundary. But mass cannot cross the system boundary. और देखो बेटा ये सिस्टम को हम कंट्रोल मास सिस्टम भी कहते हैं. अनदर नेम ऑफ दिस सिस्टम इज कंट्रोल मास सिस्टम. इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल मास सिस्टम. Mass remain fixed in this system. So therefore it is also termed as the system of fixed identity. It is a system of fixed identity. Okay. So further note down. It is also called as a control mass system. It is also called as control mass system. Or the system of fixed identity. Or the system of fixed identity.
as its mass remains constant, as its mass remains constant. अब इसका नीचे एक एग्जांपल लिखने का, फॉर एग्जांपल a gas enclosed in a piston and cylinder arrangement. A gas enclosed in a piston and cylinder arrangement. तो ये हो गया अभी क्लोज सिस्टम. So after the closed system, now let's discuss open system. Okay. मोस्ट ऑफ आवर इंजीनियरिंग सिस्टम आर ओपन सिस्टम. लेकिन अभी ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? ये सिस्टम के अंदर क्या होता था, ओनली एनर्जी कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री बट मास कैन नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री. इन केस ऑफ ओपन सिस्टम, एनर्जी एज वेल एज मास both can cross the system boundary. Such a system is called as open system. Just I'll give you one example. See here, this is one of the system I have drawn. This is the inlet section, say 1. This is the inlet 1 और ये है आउटलेट सेक्शन 2. Here mass will enter into the system on one side and it will leave the system on the other side. The boundary of the open system, this is the boundary of the open system. This boundary of the open system is also, this is called as control surface. And the another name of the open system is the control volume. ओके. देखो मास अंदर आता है, बाहर भी जाता है. जैसे कि अपना किसी भी व्हीकल का अगर इंजन है तो उसमें क्या होता है कि जैसे इंजन के अंदर, जैसे फ्यूल के साथ हम इंजन ये एयर को मिक्स करते हैं इंजन के अंदर, तो क्या होता है दैट इंजन सक्स द एयर, एयर सक करता है, मतलब एयर इंजन के अंदर रहेगा. तो इंजन के अंदर क्या है, अपना सिस्टम है, जो भी गैस रहेगा इंजन के अंदर वो दैट इज आवर सिस्टम. तो क्या हुआ, वो एयर अंदर आया, फ्यूल भी अंदर आता है, एयर और फ्यूल दोनों मिक्स होता है, उसका कंबशन होता है एंड आफ्टर द कंबशन द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विल लीव द इंजन. मतलब क्या हो गया, मास अंदर आया और बाहर चला गया. right? So the engine of any of the vehicle, it is called as internal combustion engine. अब internal combustion engine क्यों कहते हैं उसको? Because the combustion of that fuel takes place inside a closed chamber. अगर combustion closed chamber में होता है तो ऐसे engine को internal combustion engine कहते हैं. So that is internal combustion engine. Okay. Now अभी मास का समझ में आ गया इंजन के अंदर. अब जैसे इंजन के अंदर एयर और फ्यूल दोनों मिक्स हुआ, उसका अगर इग्निशन हुआ, इग्निशन की वजह से क्या होगा, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होता है. अगर हीट डेवलप हो गया तो वो हीट की वजह से क्या होता है कि वी गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन. अपने किसी भी गाड़ी के इंजन के अंदर पिस्टन सिलेंडर होता है, तो हीट की वजह से पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट मिलता है. मतलब क्या होता है, वर्क डेवलप हुआ, डिस्प्लेसमेंट मिला मतलब वर्क मिला अपने को. दैट वर्क, दैट इज दैट पावर इज बीन ट्रांसफर्ड टू द व्हील्स एंड वी गेट द मूवमेंट ऑफ द व्हील. ओके. अब जो हीट जनरेट, मतलब क्या होगा, एनर्जी जनरेट हुआ सिस्टम के अंदर ही, और क्या होता है, एनर्जी वर्क के फॉर्म में बाहर गया. इंस्पाइट ऑफ दैट, अगर कभी कोई बाइक चला के अगर आया है तो वो कभी इंजन को टच नहीं करता है, वो क्योंकि गर्म होता है, वो इंजन हाथ जल जाएगा ना उसकी वजह से. मतलब क्या होता है कि वो इंजन डेसिपेट करता है हीट किसको, सराउंडिंग को. तो इंजन का वॉल्स मतलब क्या हो गया, वो बाउंड्री हो गया. तो हीट भी डेसिपेट हो रहा है. हीट एंड वर्क बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. यानी कि ओपन सिस्टम के अंदर heat and work both will cross the system boundary. Such a system is called as open system or control volume. The boundary
of an open system is termed as control surface. And as far as the examples of this open system are concerned, you can give n number of examples. जैसे पेट्रोल पंप पर अगर हम जाते हैं तो गाड़ी में अगर हवा भरने का रहेगा तो वो जो हवा भरने के लिए जो मशीन रहता है इट इज अ कंप्रेसर बेसिकली। लेकिन कंप्रेसर कौन सा, तो जो बड़ा टैंक होता है वो कंप्रेसर नहीं, वो तो वो जो टैंक दिखाई देता है दैट स्टोर्स अ हाई प्रेशर एयर इनसाइड इट, कॉम्प्रेस्ड एयर। उसके ऊपर एक छोटा सा मशीन होता है दैट इज अ कॉम्प्रेसर। दैट कॉम्प्रेसर इज अ ओपन सिस्टम। IC engine, internal combustion engine, is a obviously open system. Then there are various turbine, gas turbine, steam turbine, like this. These are all open system. Then condenser, okay, evaporator, like this. Various mechanical engineering devices are there which can be given as an example of open system. तो ज़्यादातर अपना इंजीनियरिंग के अंदर जो सिस्टम्स होता है दो सिस्टम्स आर ओपन टाइप। एनीवे, अभी पुट द अनदर टाइटल दैट इज ओपन सिस्टम। जैसे आपको इधर दिखाई दे रहा है ओपन सिस्टम स्लैश कंट्रोल वॉल्यूम, फिगर बना लेने का। So anyway, note down please. In this system, energy and mass both can cross the system boundary. Energy and mass both can cross the system boundary. The boundary of an open system, the boundary of an open system is called as control surface. It's called as control surface. Most of the engineering systems, most of the engineering systems are of open type, are of open type. Okay, then write down, for example, IC engine, I dot C dot, IC मतलब internal combustion, IC engine, comma compressor, compressor, comma gas turbine, comma gas turbine, comma steam turbine, etc. Steam turbine, etc.
Okay, then the another type of a system is a isolated system. So isolated system is a hypothetical concept, imaginary होता है, कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज तक टिल डेट नो इंजीनियर could build a perfect isolation। कोई भी इंजीनियर आज तक परफेक्ट आइसोलेशन क्रिएट नहीं कर सका है, बट स्टिल देर इज अ isolated system created by the god, and that is the universe। यूनिवर्स इज द ओनली आइसोलेटेड। अब यूनिवर्स मैंने यूनिवर्स का डेफिनेशन क्या होता है तुमको? अ सिस्टम एंड सराउंडिंग कंबाइन टुगेदर फॉर्म्स अ यूनिवर्स। अब सिस्टम और सराउंडिंग को कंबाइन करके अब यूनिवर्स के बाहर है क्या? कुछ भी नहीं है। दैट इज द ओनली आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन फिर भी एग्जाम्पल अगर देने का रहेगा अपने को, तो व्हाट कैन वी डू हियर? यू कैन राइट डाउन हियर, से आई ड्रॉ हियर वन कंटेनर and I will show that this particular container is isolated। खाली इंसुलेशन लिख के काम नहीं चलेगा, अपने को इधर लिखना पड़ेगा परफेक्ट। दिस इज परफेक्ट इंसुलेशन and here there is a gas enclosed in a perfectly insulated container। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल। अब ये इसकी वजह से क्या होगा? अगर इंसुलेटेड है तो मतलब क्या? परफेक्ट इंसुलेशन अगर रहेगा तो इन दैट केस, अब कंटेनर है, एनक्लोज्ड कंटेनर है, तो गैस का मास तो कम ज्यादा हो ही नहीं सकता। मतलब मास विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज मास कैन नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ओके, वो एक बात हो गया। दूसरा, इंसुलेशन परफेक्ट होने की वजह से एनर्जी सिस्टम के न तो अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर नहीं। मतलब नाइदर एनर्जी नॉर मास कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। neither energy nor mass can cross the system boundary। such a system is called as isolated system। ऐसे सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब इसका एग्जांपल यही जो मैंने अभी तुम लोगों के सामने बनाया, दैट इज अ गैस एनक्लोज्ड इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड कंटेनर। अब जब मैंने परफेक्टली कहा तो ऑब्वियसली परफेक्टली कभी इंसुलेशन है नहीं, बताइए मैंने। और दूसरा इसका एग्जांपल यूनिवर्स, दैट इज अ गॉड्स क्रिएशन, नोबडी कैन बीट इट। ओके, so put the another title, third isolated system। फिगर बना लेने का ये। Okay, note down, in this system neither energy nor mass, neither energy nor mass can cross the system boundary, can cross the system boundary।
For example, a gas enclosed a gas enclosed in a perfectly insulated container and another example is universe. These are the two examples of isolated system. Okay, यहाँ पे अभी किसी को कुछ डाउट हुआ है टाइप्स ऑफ सिस्टम में? फाइन. चला मग आता पुढचा कन्सेप्ट घेऊया आपण. I'll clear the screen. Before I proceed further, you see what happens in some gate papers also. Sometimes they give the name of any engineering device, any machine. Say, for example, a boiler. A boiler is which type of system? नीचे options: closed system, open system, isolated system, and fourth, none of the above. ऐसा कुछ गेट में क्वेश्चंस पूछे हैं. ओके, सो जैसे दोज हु आर प्लानिंग टू जस्ट प्रिपेयर फॉर द गेट, दे हैव टू जस्ट स्टडी दिस सब्जेक्ट बाय हार्ट. तो एनीवे, तो आगे का कंसेप्ट लेते हैं अभी अपन. Another is just the properties of the system. Now we will discuss the properties of the system. So property, what is the meaning of the properties of the system? The properties of the system, the meaning of the property is that any characteristic of a system by which its physical condition can be identified. Any characteristic, कोई भी characteristic जिससे अपन सिस्टम का फिजिकल कंडीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. For example, suppose the room in which you are sitting is been cooled by the air conditioner. यूजुअली एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पर टेम्परेचर कितना कम ज्यादा हो रहा है वो भी दिखता है अपने. कुछ एसी में दिखता है, कुछ में नहीं दिखता. ओके, तो क्या हो रहा है कि जैसे अगर जब हम रूम में आए, रूम वॉज हॉट. ओके, सो सपोज वी हैव स्टार्टेड द एयर कंडीशनर. ओके, सो एट द बिगिनिंग द रूम टेम्परेचर वॉज ऑब्वियसली द सराउंडिंग टेम्परेचर. उसके बाद जैसे एसी थोड़ा कूलिंग करना चालू करता है, तो टेम्परेचर इनसाइड द रूम विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, कम होते जाएगा. सपोज रूम में 30 था, तो देन 28, 25. अगर मान लो आपने 23 पर सेट करके रखा, तो वो 23 पर लेके आएगा. डिस्प्ले पर दिखता है अपने को 23 टेम्परेचर. तो क्या टेम्परेचर से क्या हो रहा है, मेरे को रूम का फिजिकल कंडीशन आइडेंटिफाई करने को हो रहा है. टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, लाइक दिस प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. अभी जो रूम के अंदर आप बैठे हो, रूम का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वॉल्यूम है. सो दैट वॉल्यूम इज ऑल्सो the property of the system. Like this, there are various properties: temperature, pressure, volume, enthalpy, entropy, internal energy. Like this, there are various properties of the system. One by one we'll discuss them. So I hope the meaning of the property is clear to you. So पहले जरा इधर मैं लिखता है property. Okay. You also put the title as property and note down one line. Any characteristic by which the physical condition
of a system can be identified is called as property. For example, temperature, pressure, volume, etc. Temperature, pressure, volume, etc. Then the types of properties: intensive, extensive, and specific properties. These are the three types of properties. ये भी एग्जाम में पूछा है किधर किधर। और देखो यूजुअली क्या होता है तुम्हारा जो यूटी के अंदर द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द यूटी आर द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ये पूछता ही है यूटी के अंदर। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल मास। टोटल मास are called as intensive properties. The properties which depends on total mass are called as extensive properties, and the properties which are calculated, थोड़ा सा इसे टैब से लिखने के लिए दिक्कत होता है। The properties which are calculated for 1 kg mass are called as specific properties. अब और थोड़ा एक एक डिस्कशन थोड़ा इसका खींचते हैं अपन एग्जाम्पल के साथ में। ओके, अब जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल मास। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल जैसे सपोज जो रूम के अंदर आप बैठे हो, वापस मैं एसी का ही एग्जाम्पल देता हूँ। रूम के अंदर अगर एसी लगाया है, टेम्परेचर आपने 20 डिग्री सेट कर दिया, रूम टेम्परेचर था 30, वहां से वो रूम का कूलिंग करते करते लेके आएगा 20 डिग्री तक। मान लो 20 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में अगर आपने रूम में पार्टीशन डाला, पार्टीशन डालने के बाद में वो रूम का पार्टीशन डालने के बाद दोनों तरफ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होता क्या, आधा होता क्या, नहीं होता? टेम्परेचर ऑन बोथ द साइड ऑफ द पार्टीशन विल रिमेन सेम, राइट है? मतलब क्या हो गया, पार्टीशन डालने के बाद में रूम का वॉल्यूम चेंज हुआ है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। या फिर कोई एक आध रूम है, सपोज जो रूम में आप अभी फिलहाल बैठे हो वहां पर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर तुमने पार्टीशन डाल दिया रूम में तो टेम्परेचर आधा थोड़ी होता है, वॉल्यूम आधा हो जाएगा। सपोज वॉल्यूम अगर 100 मीटर क्यूब है तो वो 50 मीटर क्यूब हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर विल रिमेन 25 डिग्री सेल्सियस ऑन आइदर साइड। सो टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट of total mass, so temperature is a intensive property. Okay, similarly pressure is also the intensive property। अगर तुम्हारे रूम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.01325 बार इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे चल के ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज मैं लिखा के दूंगा तुमको। 1.01325 बार इज अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रूम के अंदर जो रहेगा। अब पार्टीशन डालने के बाद वो प्रेशर आधा थोड़ी ना होता बेटा, प्रेशर विल स्टिल रिमेन सेम ऑन आइदर साइड। मतलब क्या हुआ, प्रेशर टेम्परेचर दीज आर independent of total mass and therefore these properties are intensive properties. So as an example here I'll write down pressure, temperature, okay, etc. ऐसा जैसे types of properties लिखते हो, you have to write down intensive property, it is in the properties which are independent of total mass. Then extensive properties, the properties which depends on total mass.
प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन टोटल मास। जरा इसको थोड़ा खींचते हैं अभी। अब जरा देखो वॉल्यूम, अभी मैंने क्या बताया था वॉल्यूम के लिए, अगर कोई कंटेनर है, सपोज इफ हियर देयर इज अ कंटेनर, okay, and this container contains certain amount of gas, it contains a gas, let's say the volume is 10 meter cube. Now if I insert a partition here, जैसे पार्टीशन अगर डाल दिया मैंने, पार्टीशन डालने के बाद मास तो चेंज हो जाएगा, ये मास चेंज हो जाएगा। सपोज मास इज 100 kg, तो पार्टीशन डालने के बाद हो सकता है मास दोनों तरफ या तो सेम रहेगा या अलग अलग हो जाएगा। मास एग्जैक्टली सेंटर पर डाल दिया तो 50 kg इधर 50 kg इधर रहेगा, वॉल्यूम ही चेंज हो गया। मतलब जैसे मास चेंज होता है तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ। मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लाइक दिस मोमेंटम, ओके, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ऑब्वियसली मास अगर चेंज हुआ तो ये मोमेंटम भी चेंज होने का ही है, बराबर है। सो देयरफॉर दिस मोमेंटम इज आल्सो द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कुछ एक थोड़े बहुत एग्जांपल दे देने की इधर। सो वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट इधर रहेगा मीटर क्यूब, ओके, वॉल्यूम, देन momentum, these are the examples of extensive properties. Then specific properties, अब ये specific properties क्या होता है, तो specific properties are those properties which are calculated for 1 kg mass। ऐसा प्रॉपर्टी जो 1 kg मास के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, वो प्रॉपर्टीज को कहा जाता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। जैसे कि वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम, ये वॉल्यूम यहाँ पर, ये वॉल्यूम का यूनिट इधर मैं लिखा है मीटर क्यूब रहेगा, दिस इज द टोटल वॉल्यूम मीटर क्यूब। अब दूसरा एक टर्म रहेगा इधर स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, दैट इज द टोटल वॉल्यूम डिनोटेड बाय कैपिटल वी बाय मास। सो दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम आई डिनोट हियर बाय स्मॉल वी, स्मॉल वी से मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम डिनोट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम का यूनिट क्या है, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, मास का यूनिट क्या है केजी। तो ऑब्वियसली द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम विल बी मीटर क्यूब पर केजी, right? Like this there is a internal energy, specific internal energy, specific internal energy अगर कहा है, specific internal energy, ओके, सो यूनिट जूल्स पर केजी, जूल्स पर केजी जैसे लिखा मैंने, तो देन इट बिकम्स अ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ओके। नाउ और अदरवाइज ओनली इफ आई राइट डाउन इंटरनल एनर्जी और यूनिट अगर इसका जूल्स है तो देन इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। लेकिन पर केजी अगर आ गया उसके यूनिट में तो समझ लेने का कि दैट इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करने के लिए आपने खाली एक काम करने का कि वो जो भी प्रॉपर्टी है उसके यूनिट में अगर पर केजी अगर आ गया, पर केजी आ गया, मतलब समझ लेने का कि दैट इट इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का टोटल मास से तो कुछ लेना देना है नहीं। These properties are calculated for 1 kg mass, इनके यूनिट में पर केजी आता है, 1 kg मास के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो therefore by default all the specific properties are extensive properties। I repeat, आखिरी वाला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखो। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अगर 1 kg मास के लिए अगर हम कैलकुलेट करते तो इसका टोटल मास से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब क्या हो गया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल मास एंड देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो एग्जांपल भी दे दिया है मैंने, राइट है। सो पुट द टाइटल एज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव आगे ऐसे लिखो, इतना ही लिखो, इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल मास, एग्जांपल प्रेशर टेम्परेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टोटल मास, एग्जांपल वॉल्यूम मोमेंटम। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड फॉर 1 kg मास, इसकी भी एग्जांपल्स डाल देता इधर मैं। एसपी डॉट लिखा मतलब स्पेसिफिक हो गया ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक
इंटरनल एनर्जी specific enthalpy etc. These are all the examples. यामध्ये कुणाला काही डाऊट असेल तर विचारा रे बाबा, मला किसी को कोई डाउट है तो पूछो बाबा मेरे को. हो गया क्या बेटा लिख के? Did you finish this writing? Shall I clear the screen now? चला स्क्रीन आता क्लिअर करतोय बेटा मी. ओके बेटा, जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस वक्त देखो बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क पॉइंट अभी हम जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पर. जो अपना फाइनल एग्जाम जो रहेगा वो फाइनल एग्जाम में मॉड्यूल वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, this is a tentative mass distribution. Our first module is basic concepts and first law of thermodynamics. जरा लिंक भी चलेगा थोड़ा सा ही. अब first law of thermodynamics is not new for you. Law of conservation of energy is the first law of thermodynamics. जैसे अभी एकदम डिटेल में तो नहीं बताऊँ, ब्रीफ आइडिया दूंगा. ओके तो लेकिन उसको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू अपने को यूज करने का एंड वी हैव टू अप्लाई इट. अप्लाई करने का है तो किसको अप्लाई करने का, तो हम वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे क्लोज्ड सिस्टम को एज वेल एज ओपन सिस्टम को. ओके तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिलेटेड टू ओपन सिस्टम एज वेल एज फॉर क्लोज सिस्टम, ऐसे दो पार्ट में रहेंगे. ओके और ओपन सिस्टम को जब हम अप्लाई करेंगे तो देन दैट सेम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल गिव अस अ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. यहाँ पर ये मॉड्यूल के अंदर न्यूमेरिकल will be of 10 to 16 marks and theory 4 to 6 marks. अभी तक दो न्यूमेरिकल्स अभी तक के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, एक होता है क्लोज सिस्टम पर और दूसरा होता है ओपन सिस्टम पर.
ऐसे दो न्यूमेरिकल्स आए हैं, ओके, या 8 और 8+4 या फिर 8+8, ऐसे दो न्यूमेरिकल्स आए हैं, राइट। नाउ इन स्पाइट ऑफ दैट, द अनदर मॉड्यूल is a second law of थर्मोडायनेमिक्स, और इसी के अंदर कंसेप्ट आएगा एंट्रोपी। अभी जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके अंदर वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन इन डिटेल, एज वेल एज रेफ्रिजरेटर एज एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेटर का जो कंसेप्ट अभी हम ये थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे बेटा, वही कंसेप्ट तुमको सेमिस्टर 6 में लगने का रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर। देखो ये सब ऐसा है, ये फर्स्ट मॉड्यूल का जो पार्ट है, ये फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी उसी में लगता है, ओके, पावर इंजीनियरिंग में लगता है। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है ये, ओके। एंड रिलेटेड टू दिस न्यूमेरिकल 8 to 12 mark and theory 6 to 10 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर देखो, जब मैं थियरी लिखता है ना, तो थियरी का मतलब ये नहीं होता है कि राइट शॉर्ट नोट डिफाइन, ऐसा वैसा नहीं होता है। थियरी बाय डिफॉल्ट इंक्लूड्स द डेरिवेशन, और इस सब्जेक्ट के अंदर डेरिवेशंस है, बहुत ज्यादा है डेरिवेशंस, ओके। तो थियरी मतलब नहीं तो तुम यू विल बी अंडर द इम्प्रेशन की वह थियरी मतलब मेरे को शॉर्ट नोट वगैरह ऐसा वैसा लिखने के लिए मिलता गया। एंड सी, फॉर दिस सब्जेक्ट थियरी ऐसा नहीं होता है कि वही तुमने थोड़ा बहुत ऐसा कुछ पढ़ लिया और तुम लिख सकते हो, नहीं। इफ यू नो इट, यू नो इट, अदरवाइज यू डोंट नो इट, ऐसा है। फेंकने का काम नहीं होता इधर वो, ओके। टेक्निकल पार्ट आता है, वो अपने फील्ड से रिलेटेड है। तो थियरी बाय डिफॉल्ट इंक्लूड्स द डेरिवेशन, इट कैन बी डेरिवेशंस और राइटिंग डाउन सम कंसेप्ट आल्सो। और यहाँ पर कुछ एक जो लॉज है उसके प्रूफ जो होते हैं, दोज आर लॉजिकल प्रूफ, ओके। एनीवे, देन आफ्टर दैट the third module is availability, and property relations. Here too, the numericals are 8 to 12 marks and the theory is from 6 to 10 marks. Now, in availability, we'll be discussing that out of the total amount of energy, how much amount of energy is being converted into useful amount of work, एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वी हैव वेस्टेड, मतलब जो वेस्ट हुआ है, जो वर्क के अंदर नहीं कन्वर्ट हुआ वो अनअवेलेबल एनर्जी, जो वर्क में कन्वर्ट हुआ है वो अवेलेबल एनर्जी है, ओके। एंड इवन द कंसेप्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, द कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी आल्सो विल डिस्कस ओवर हियर। प्रॉपर्टी रिलेशंस के अंदर, नाउ प्रॉपर्टी रिलेशंस में अपने को और भी, जैसे कुछ एक टेबल्स यहाँ पर यूज करते हैं हम। स्टीम टेबल हो गया, स्टीम टेबल is a table which gives us the properties like specific enthalpy, specific entropy, specific volume at different temperatures and pressures of a steam. Steam के लिए होता है वो। We'll have to buy that steam table by R.S. खुरमी। आगे चल के अपने को लगने का है, और आगे भी तुमको हायर सेमिस्टर्स में भी लगते ही रहेगा, ओके। तो तो ऐसे कुछ कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देन आफ्टर दैट, the another module, ये जरा पहले 3 मॉड्यूल का लिख लो आप जरा, फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स। आई हैव टू क्लियर द स्क्रीन देन। ओ जस्ट अ मिनट।
Okay. Then properties of pure substance and vapor power cycle. अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है कि जस्ट स्टीम इज अ प्योर सब्सटेंस. ओके. अभी मतलब एट इवन आफ्टर द फेज चेंज, ऐसा सब्सटेंस कि जिसका फेज चेंज होने के बाद में भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, ऐसा दैट इज अ प्योर सब्सटेंस. ओके. तो स्टीम इज अ प्योर सब्सटेंस. अब जब स्टीम फॉर्म होता है तो स्टीम पासेस थ्रू द डिफरेंट फेजेस. So those concepts of steam formation we will be discussing over here, and in vapor power cycles we will be discussing those cycles which will run, or the systems which will be using vapor as a वर्किंग मीडियम. ऐसा सिस्टम जो वेपर को वर्किंग मीडियम करके यूज करेगा, ऐसा सिस्टम्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो श्योर शॉट यहाँ पर इसका एक वेपर पावर साइकिल के ऊपर एक 10 to 12 मार्क का न्यूमेरिकल आता ही है, न्यूमेरिकल. और यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम. ओके. इसका भी एक 4 to 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल यूजुअली होता है. तो मतलब न्यूमेरिकल विल बी ऑफ 10 to 14 marks, and the theory will be of 4 to 8 marks. Then after that, the another module is gas power cycles. अब गैस पावर साइकिल्स के अंदर जैसे इंटरनल कंबशन इंजन मैंने बताया था तुमको कि इंटरनल कंबशन इंजन इज इंजन इन विच द कंबशन ऑफ अ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड अ क्लोज्ड चेंबर. ऐसे किसी भी इंजन को हम इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं. तो इंटरनल कंबशन इंजन जो साइकिल्स के ऊपर काम करता है, तो मतलब हाउ डज इट वर्क्स. देयर आर डिफरेंट साइंटिस्ट हु हैज वर्कड ओवर इट. So in this we'll be discussing the Otto cycle, diesel cycle, Ericsson cycle, Stirling cycle. Like this many of the cycles we'll be discussing here. यहाँ पर भी यूजुअली 12 मार्क का एक न्यूमेरिकल मिलता है, मिनिमम 12. ओके. मिनिमम 12 मार्क का एक तो न्यूमेरिकल मिलता ही अपने को. सो न्यूमेरिकल 10 to 14 मार्क्स and theory 6 to 8 मार्क्स. ओके. ये मॉड्यूल नंबर 4 और 5 का लिखो, तब तक मैं जरा ऊपर का क्लियर करता है. ओके. देन अभी इस साल थोड़ा सिलेबस में चेंज हुआ. पहले ओल्ड सिलेबस में मतलब अप टू लास्ट ईयर देयर वाज compressors in the syllabus. Now that compressors is been replaced by this compressible fluid flow. Compressible fluid flow, that is the gases are compressible. So when the gases are flowing, then at that time it may be possible that during the flow of that gas some shock waves may be formed, and the effect of those shock waves on the flowing gas as well as on the system will be discussing over here. So numericals 8 to 14 marks and theory 6 to 8 marks. So like this is the overall marks distribution of the complete subject.
सो टोटल अपना जो क्वेश्चन पेपर तो जैसा वेटेज तो 80 मार्क्स का है, लेकिन टोटल जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो 120 मार्क्स का होता है, क्योंकि देर आर 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 तो वो कंपलसरी रहेगा, जैसे यू नो द पैटर्न, पेपर पैटर्न फ्रॉम फर्स्ट ईयर, ओके वैसे ही रहेगा। सो इन क्वेश्चन पेपर numericals will be 60 to 70% and theory will be 30 to 40%, but theory includes derivations. Okay, then the reference books. रेफरेंस बुक बेटा एक से एक बुक में सिलेबस नहीं मिलेगा तुमको, तो मेरा नोट्स देयर आर सफिशिएंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नोट्स के अलावा भी अगर किसी को कुछ अगर ये बुक अगर यूज करना ही है, ओके, तो देन यू कैन यूज थर्मल इंजीनियरिंग बाय आर.के. राजपूत, थर्मल इंजीनियरिंग और थर्मोडायनेमिक्स बाय आर.के. राजपूत, कोई भी चलेगा। बट इफ यू वांट टू बाय द बुक, देन बाय द बुक ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग क्यों? क्योंकि ये उनको आगे चल के थर्मल इंजीनियरिंग भी सब्जेक्ट आता है सिलेबस के अंदर। इंस्पाइट ऑफ दैट अगर कोई गेट या आईएएस अगर प्रिपेयर करने का रहेगा तो उनको थर्मल इंजीनियरिंग पूरा पढ़ना ही पड़ता है, ओके। तो अदरवाइज थर्मोडायनेमिक्स बाय आर.के. राजपूत इज सफिशिएंट। अनदर book is thermodynamics by P.K. Nag. Just a minute. P.K. Nag. And one more book, Thermodynamics by Yunus Sengel. ये थर्मोडायनेमिक्स बाय यूनुस सेंजल, इट इज यूजुअली अवेलेबल इन एनी ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, और बड़ा अच्छा बुक है ये। बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे एक्सप्लेन किए, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए अपने काम में नहीं आता है, क्योंकि अपन ऐसा यूनिट यूज करते हो, ये बुक जो है वो एमकेएस यूनिट में है। तो पीके नाग इज आल्सो द गुड बुक, राइट है। तो कॉलेज के लाइब्रेरी में से लेने का रहेगा तो यूनुस सेंजल लेने का। सो दिस आर यूजुअली द रेफरेंस बुक, लेकिन अपने नोट्स के अंदर यूजुअली कवर होता है। अब क्या होता है, हायर सेमिस्टर में ऐसा कोई नहीं है किसी इसका टेक्स्ट बुक नहीं होता है। टेक्स्ट बुक मतलब सबका सब एक ही इसमें नहीं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी को ये टेकमैक्स वगैरह भी यूज करने का रहेगा तो अपने को कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं होता है, टेकमैक्स भी चलेगा, ओके। लेकिन वो टेकमैक्स बहुत बार क्या होता है, कौन सा रिलेशन कहाँ से लेके आता है वो उसको उसका ही पता नहीं होता है, और न्यूमेरिकल भी उसके थोड़े से डाउटफुल होते हैं बहुत बार। तो अपना नोट सफिशिएंट है, और जो न्यूमेरिकल्स है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा तुमको, तो दूसरा कोई बुक देखने का जरूरत नहीं। और देखने का भी है तो बुक स्टैंडर्ड बुक देखने का, एक ही बुक सफिशिएंट है तुम लोगों को, ये थर्मल इंजीनियरिंग और थर्मोडायनेमिक्स बाय आर.के. राजपूत, ये भी रेफर कर लिया तुमने तो भी बहुत हो गया, ओके। सो ये लिख लेने का बेटा इतना जरा।